वालों के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल अविलंब लोक मत के क्वेश्चन सी ई डन क्वेश्चन नंबर 1 सर क्वेश्चन नहीं शून्यकाल में नंबर 1। थैंक यू सर बोला सर थैंक यू सर बोला सर even though the matter was raised today in the question hour, I would like to draw the attention of the House to the most important matter, that is regarding the NEET examinations which happened. Not just the NEET examinations, all competitive examinations which the country is carefully looking upon. Sir, the motto of the Government of India, the Education Department, in the new education policy 2020 is to educate, encourage and enlighten. Sir, in the recent years, India has witnessed a troubling rise in the competitive exam paper leaks, undermining the integrity and credibility of the education and the recruitment systems. Sir, as per the government data, a total of 70% government data, 70 examination papers have been leaked in the last 7 years, sir. 7 years. Across 15 states, raising the integrity of these competitive exams in the country. Sir, states like Tamil Nadu, many other regional parties have raised the concern about the integrity of these examinations and they want these competitive exams to be cancelled. Okay. And a mechanism. Sir, अभी शुरू किया सर. सर बैलेट में मिला है सर. सर जस्ट कंटिन्यू करना दो तो बैलेट में सर 24 lakhs 6,079 students wrote the NEET examination. So the NTA on June 4th, 2024 faced widespread allegations of irregularities and paper leaks. Same, sir. Sir, notably with 67 top-ranking candidates scoring 99.99 percentile, including 6 from a single examination center in Haryana, sir. Sir, who owns these centers in Haryana? Sir, in Gujarat, the National Testing Agency had selected a school in Gotra as an examination center, despite of the fact that the Gujarat High Court has imposed a fine of 35 lakhs on the organization that runs these schools. So what credibility does these examinations have, sir? The Gujarat schools, Haryana schools are all under scrutiny, sir. Sir, I am concluding. Sir, I am concluding. Sir, this is one of the biggest scams the country has seen. The country has to constitute a high-level fact-finding committee. Sri Abdul Samad Samdani. देखिए, आप सुनो, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जांच कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, केंद्र बिल लेकर आ गई है, सारे विषयों पर सब चीज़ें हो चुकी है। फिर आप क्यों विषय को पूरे देश के जो अपना सिस्टम इतना बेहतर है कि दुनिया के अंदर भारत का एजुकेशन सिस्टम और हमारी परीक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बेहतर है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नो क्वेश्चन डॉक्टर एसपी अब्दुल समद शामी। Sir, through you and this August House, I draw the attention of the government to the alarming issue of an increase in sea turbulence, causing serious coastal erosion along the Arabian Sea coast in Kerala. Sir, it is a very serious phenomenon which deserves urgent attention and very powerful and effective measures of solution. Sir, the serious phenomenon has resulted in the loss of several meters of shoreline in places like Palapatti, Ajmer Nagar, Veliyangod, etc. And also, sir, protection measures are highly needed, urgently needed in various other places including Tannitura, Pattumuri and Padijarekara, near Kotai, Munangadi, Kodaparambu, Kashmir Beach, Ashanpadi, and sir, Vadikal, Pallivalappu, Vakadi, Adakadapuram, Paravanna, Kutai, Pudiyagadapuram, Anjudi, Chiran Gadapuram, Tuval Tiram, Chapapadi, Alingal Beach, Saddam Beach, all these areas, sir, which belonging to
my constituency, Pannani. Sir, this threatens the livelihoods of fishermen, as fishing and other local businesses have been adversely affected, along with the infrastructure such as roads, bridges, and public utilities. Sir, this problem affects Kerala's entire Arabian Sea coast. I urge upon the government to do the needful to conduct an authentic and scientific study involving experts in oceanography, environmental science, and coastal engineering to identify the root causes of this increased sea turbulence and coastal erosion. Madam, immediate steps need to be taken to implement the safety measures such as the construction of permanent protection like breakwater, tetrapod systems, etc. Furthermore, special funds and a package have to be formed and formulated and declared by the government for assisting the poor fishermen with the compensation for damaged houses and loss of livelihood. Madam, it is a very serious problem. Year by year, land is taken by the sea and nothing is done to prevent the situation, to protect and save the fishermen. The poor fishermen, they are suffering, madam. And this year, during the monsoon, especially in Kerala, at various places, sea erosion took place and sea turbulence created catastrophe. Consequences are so serious. So I urge upon the government, through you, madam, to take urgent steps to undo the situation, to solve the problems facing by the fishermen. Thank you. Thank you, madam. श्री रमाशंकर राजभर। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के रेवती रेलवे स्टेशन और बनकटा रेलवे स्टेशन के तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। सभापति जी, लोकसभा क्षेत्र बलिया छपरा रेलखंड के मध्य स्थित रेवती रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 से हाल्ट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया, जिसके बाद यह स्टेशन सुविधा विहीन हो गया है। छपरा बलिया के बीच सुरेमनपुर व सहतवार रेलवे स्टेशन के बाद यह तीसरा सर्वाधिक आय देने वाला स्टेशन था। यहाँ छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, बलिया सियालदह एक्सप्रेस, छपरा लखनऊ सग एक्सप्रेस, छपरा वाराणसी इंटरसिटी के अलावा 4 एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होने के बावजूद भी अब साइट का प्लेटफार्म नंबर 1 समाप्त किया गया। वृद्ध विकलांग महिलाओं को ट्रेन में चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा। कंप्यूटर के टिकट की जगह ठेका पर टिकट दे दिया गया। ट्रेनों का संचालन रेवती रेलवे स्टेशन की जगह सुरेमनपुर सहतवार से किया जाता है। इसी तरह सभापति जी, छपरा रेलखंड के बीच स्थित बनकटा रेलवे स्टेशन को भी हाल्ट स्टेशन बनाया जा रहा है, जिस कारण यहाँ भी यात्री सुविधाओं की घोर कमी है। वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 को तो ऊंचा कर दिया गया, जबकि प्लेटफार्म संख्या 1 अब भी काफ़ी नीचे है। साथ ही पेयजल, शौचालय, यात्री विश्रामालय, कंप्यूटर आरक्षण केंद्र भी खोला जाना चाहिए। यहाँ पर बनकटा में 15:027 मौर्य एक्सप्रेस और 15:03 बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस का ठहराव बनकटा रेलवे स्टेशन पर हमारे क्षेत्र की जनता मान रही है। यहाँ पर गंगा और सरयू के बीच का दोआबा का रेलवे स्टेशन है। इसी स्टेशन से बलिया के लोग बिहार को टच करते हैं और बिहार के लोग यहाँ आते हैं। रेवती रेलवे स्टेशन बहुत पुराना, वहाँ हॉस्पिटल हैं, डिग्री कॉलेज हैं, थाना है। 2 लाख दोआबे में फंसे लोग वहाँ जाते हैं और वही हाल बनकटा रेलवे स्टेशन की है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे इलाके की जनता, सलेमपुर लोकसभा की जनता पर कृपा करें, इन दोनों रेलवे स्टेशन को पुनः बहाल करें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। श्री बेन्नी है बहनन। Thank you, Honorable Chair. Sir, I am standing here to bring your attention to a pressing matter of heavy rainfall casualties in the state of Kerala. The state of Kerala is in a grave situation where unprecedented floods have weakened havoc on the state, causing extensive loss of the life and property, displacement of thousands of people, and substantial damage of crops, livestock, and infrastructure. The latest statewide rainfall distribution data from the Indian Meteorological Department indicated that Kerala experienced the second highest percentage departure from normal rainfall
during the last week with an accumulation of 8.45 centimeter of rain. I am deeply saddened to report that last week 6 individuals tragically lost their life in various rain-related incidents across in the state. As of the July 17th, around 474 individuals from 143 families have been shifted to 31 relief camps across the state. Besides, power outage and other infrastructural damages are retracting the lives of several people in the state. According to Kerala State Electricity Board, more than thousands electric poles and several transformers have been collapsed during the heavy rain in the last that has been striking the state. This has caused a loss of lakhs of rupees. Sir, given the magnitude of this disaster, I urge the central government to provide immediate assistance to support rescue and relief operations and further allot necessary resources for rehabilitation and reconstruction efforts. Also, a comprehensive package should be considered to support the state of Kerala. Thank you. जी ठीक ठीक माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्नू जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। मैं पालघर ज़िले में ग्रामीण पर्यटन और समुद्री तट और खूबसूरत बीच, किले और पुरातन मंदिर जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग करता हूं। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधार पर्यटन है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा के क्षेत्र में सागरी, नागरी, डोंगरी जैसे क्षेत्र हैं। जैसे अपने वातावरण में प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन के हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश में पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और समुद्री तट जो कि अराउंड 84 किलोमीटर है और खूबसूरत बीच विदेशी पर्यटकों और अपने देश के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ के शांत समुद्र तट जो अपनी सुनहरी रेत और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, विश्राम और पानी के लिए भी आदर्श है। यह शहर और क्षेत्र पर्यटकों को ट्रैकिंग, कैंपिंग और अपनी समृद्ध वनस्पतियों के खोज के अवसर पर प्रदान करता है और पालघर प्राचीन गुफाओं और किलों सहित ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है जो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। पालघर में कई ऐसे गढ़ हैं जैसे वसई किला है, अरनाड़ा है, कहोज है, भूपतगढ़ है, ढानू फोर्ट है और कई ऐसे वेल नोन वाटरफॉल्स है जैसे दाबोसा, हिरटपड़ा, कालमांडवी जो कि जवार तालुके में आते हैं। काफ़ी ऐसे पुरातन मंदिर है जैसे जीवदानी माता, महालक्ष्मी माता, वाघोबा देव, शीतला देवी, वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, वेल नोन ऐसे परशुराम मंदिर जो गुंजकाटी, वाड़ा तालुके में स्थित है। वर्ल्ड नोन इस्कॉन सेंटर है जो गालतरे में स्थित है। शिव मंदिर जो पुरातन शिव मंदिर है जैसे बालकापरा जवार में है, कावड़ा विक्रमगढ़ में है और देहरे जवार में है। डहाणू बीच महोत्सव होता है जो कि काफ़ी सालों से पर्यटकों का आकर्षक स्थान बना चुका है। शिरपा माड़ है जो जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण लग चुके हैं। जहाँ पालघर लोकसभा क्षेत्र में ऐसे 15 आइडेंटिफाइड प्लेसेस है और 15 अनडेवलप्ड विलेज है, एरिया जो कि डेवलप कर सकते हैं। सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के इस रूप के विकास के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन इस पालघर क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा। मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी को आपके माध्यम से आग्रह है कि पालघर जिले के संपूर्ण पर्यटन विकास, खासतौर पर ग्रामीण पर्यटन और सुंदर समुद्री तट एवं समुद्र बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहे। I can say that it can increase employment, self-employment and reduce migration as well as malnutrition. हमें विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उचित वित्तीय सहायता से पालघर के पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं पहली बार चुनकर देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में पहुंचा हूं, इसके लिए आपका और मेरे क्षेत्र की जनता का, जिसे मैं अपना भगवान मानता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं।
और मैं अपना जो शून्यकाल के अंतर्गत मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है उसके माध्यम से मैं आदरणीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का आपके माध्यम से एक मांग रखना चाहता हूं कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र ये 2 भागों में विभक्त है, जिला कांगड़ा और जिला चंबा, और दुर्गम क्षेत्र है, दुर्घटना की संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, तो आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदया मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिला कांगड़ा में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र और जिला चंबा में बाथरी क्षेत्र जो बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर 2 ट्रॉमा सेंटर, आधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की कृपा करें, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में हमें साथ के प्रदेश पंजाब में जाना पड़ता है, जिसके लिए गंभीर दुर्घटना की स्थिति में मरीज़ दम तोड़ देता है वहाँ तक पहुँचने में। तो मेरी ये प्रार्थना है कि जिला कांगड़ा के नूरपुर में और जिला चंबा के बाथरी में सुपर स्पेशल ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की कृपा करें। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। श्री वीके श्रीकंदन। Madam, the move as reported to bifurcate the Palakkad Railway Division to create a new division will not be and cannot be accepted by the people of Kerala. The jurisdiction of Palakkad Division has already been reduced to create the Salem Railway Division by carving out of it. Palakkad Division is one of the highest revenue earnings divisions in the country. The railway development is not taking place under Palakkad Division in proportionate to the earnings. Therefore, the proposed bifurcation plan should be withdrawn and instead action should be taken to implement developmental plan under Palakkad Division. Thank you. माननीय एडवोकेट अदुर जी। Thank you, sir. I would like to draw the urgent attention of the government to the recurring accidents and human casualties occurring at Mudalappidi Fishing Harbour in my constituency, Attingal, Kerala. So more than 75 fishermen have lost their lives due to the accidents in Mudalappidi Harbour. This year itself, a dozen of accidents occurred in this harbour, in which 4 fishermen have died. Sir, continuous accidents are happening due to the faulty construction of the breakwater. The local people and fishermen are alleging that the unscientific construction is the main reason for the accidents there. Sir, since 2019, I have continuously raised the issue of Mudalappidi Harbour in Parliament and with the Union Ministry of Fisheries and have been demanding a scientific solution to the problem. But it is unfortunate that corrective measures are getting delayed while such tragedies occur frequently. Sir, it is also necessary to enhance the safety measures and deploy the permanent rescue operation team in Mudalappidi. Sir, around 25,000 fishermen from the region depend upon the Mudalappidi Harbour for their livelihood. Immediate measures are required to find out a permanent solution to avoid their tragedies. I request the Union Government to implement a special project for ensuring safety of this harbour. Thank you, sir. माननीय श्री DM कथीर जी। வணக்கம் சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த அவையின் முக்கியமான கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக இந்த நேரத்தை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். என்னோட வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வித்திட்ட பூமி. முதலாக வேலூரில் தான் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக அஸ்திவாரம் போடப்பட்ட பூமி அது. அந்த வேலூர் கோட்டையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காலி மைதானம் என்பது
மகாத்மா காந்தியடிகள் உட்பட ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள், காமராஜர் அவர்கள், இன்னும் அத்தனை தேச தலைவர்களும் உரையாற்றிய பூமி அது. அந்த பூமியில் எத்தனையோ பொது நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடத்துவதற்காக இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் சமீப காலத்தில் கூட எங்க முதலமைச்சர் அவர்கள், தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்துக்காக எத்தனையோ நலத்திட்டங்களை எல்லாம் அந்த பகுதியிலிருந்து வழங்கியிருக்கிறார். இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பிரதம மந்திரி அவர்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக அந்த வேலூர் கோட்டை மைதானத்தை தான் பயன்படுத்தினார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். இப்பொழுது திடீரென்று ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா திடீரென்று வந்து அந்த பூமியை கைப்பற்றி அந்த பகுதியில் எந்த வகையான பொது நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தக்கூடாது என்று ஒரு சுத்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு வேலிகள் போட்டு இழுத்து போடப்பட்டிருக்கு. நான் இந்த அரசாங்கத்தை கேட்க விரும்புகிறேன், வேலூருக்கென்று ஒரு பொது மைதானம், அந்த பொது மைதானத்தில் தான் அத்தனை நல்ல திட்டங்களும் அங்கு நடைபெறும். மக்கள் கூடக்கூடிய இடம் வேலூர் கோட்டை மைதானத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆர்கியாலஜி உடைய அந்த பூமியை தயவு செய்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் என்பது கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது ஒரு அவசர சுற்றறிக்கை ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்டால் அனுப்பப்பட்டிருக்கு. அதில் இந்த இடத்தை உடனடியாக புல்வெளி மைதானமாக மாற்றப்பட்டு ஹார்டிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த அரசை நான் கேட்க விரும்புகிறேன், தயவு செய்து வேலூர் கோட்டை மைதானத்தை மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கொண்டு வர வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த இடத்தில் ஒரு பர்மனண்டாக ஒரு பொது மேடையை ஒன்று கட்ட வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளாக ஒரு எக்ஸிபிஷன் அல்லது பொது நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் நடத்துவதற்காக அந்த மைதானத்தை செலவின்றி ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த கேட்டுக்கொள்கிறேன். அமைச்சர் அவர்கள், சார், the honorable minister is also here. If he can intervene, he can also give a reply to me, sir. Don't listen to you. Honorable minister, sir. आपकी बात आ गई. Thank you. आपकी बात आ गई. माननीय डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी. अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपके द्वारा सरकार का और सदन के सभी सदस्यों का ध्यान अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर जो उस सारे रूट पर सभी खान पान की दुकानों, ठेलों, रेडियों और दूसरे जो शॉप्स हैं उन पर नाम लिखने का जो ऑर्डर किया है, ये एक विभाजनकारी कदम है और इससे समाज में जो शांति से वो एरिया रह रहा है, एक नई तरह का तनाव पैदा होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है। और उसके बाद उत्तराखंड में भी हरिद्वार के एसएसपी ने एक ऐसा ही ऑर्डर पास किया है कि सभी संस्थान, खान पीन की दुकानें और ठेले, रेडियां कांवड़ यात्रा के सारे रूट पर वो भी अपने नाम लिखें, जिससे मुझे लगता है कि ये एक विभाजनकारी एजेंडा है और इसको लागू करके भाजपा पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है। जो एक समाज को बांटने का एक यत्न है, इसको बंद करने के लिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि देश के नागरिकों को आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और देश को एकता को कायम रखने के लिए वो इन ऑर्डर को, इन जो अभी नीतियां बनाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने, उनको वापस लिया जाए और समाज में जो शांति प्रिय लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उनको सद्भावना से और प्यार से रहने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री विप्लव कुमार जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के त्रिपुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। त्रिपुरा राज्य माता त्रिपुरा सुंदरी का भूमि है।
माता के 51 शक्तिपीठ में से एक राज्य के उदयपुर शहर में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के रूप में स्थापित है। वहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरे भारत में मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का विकास किया जा रहा है। ये मातावारी मंदिर विकास परियोजना का उत्तर पूर्व भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दृष्टि से सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगी और त्रिपुरा का विकास सुनिश्चित करेगी और साथ ही साथ भारत की आध्यात्मिक चेतना को भी मजबूती प्रदान करेगी। पूर्व में मंदिर में विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 37.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई थी। यह परियोजना का कार्यान्वयन कार्य शुरू हुआ है तो वो पाया गया है कि श्रद्धालुओं को लाभ और स्थान के बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए आवश्यकता राशि जरूरत है। इस अतिरिक्त विकास कार्य के लिए 17.61 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो गया है। इस विषय पे तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 को उक्त धनराशि की जारी करने के लिए पत्र भी मैंने लिखा था, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से उक्त धनराशि जारी करने का आग्रह करता हूं, जिसमें मंदिर की विकास परियोजना का समय पर पूरा किया जा सके। धन्यवाद। श्री उमेश भाई बाबू भाई। अध्यक्ष महोदय जी, आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर और हवेली एवं दमन दीव में वर्तमान प्रशासक पद पर नियुक्त श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस पद पर पिछले 8 वर्षों से कार्यरत है, जबकि किसी भी यूटी में प्रशासक का जो कार्यकाल होता है वह सिर्फ 3 साल का होता है, जबकि राज्यपाल उपराज्यपाल सबका कार्यकाल 5 साल का होता है। इवन राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। वैसे में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी का 8 साल का कार्यकाल हमारी समझ से परे है। हमारी सरकार की नीति रही है प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियत समय पर बदली होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता से कार्य हो सके। इस कारण प्रशासक का ऐसे पद पर 5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल सही नहीं है। वर्तमान प्रशासक के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी कार्य हुआ है उसमें चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। आम जन दुखी और परेशान है। महोदय जी, इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद भी इस पद पर वो नियुक्त है, जबकि इस पद के लिए नियुक्ति के मापदंड भी वो पूरे नहीं करते हैं। महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वर्तमान प्रशासक महोदय को हटाकर इस पद पर किसी ईमानदार सीनियर IAS अधिकारी को लगाया जाए, जिससे आमजन को भ्रष्टाचार से राहत मिल सके और हमारी सरकार की हो रही बदनामी से भी बचाया जा सके। महोदय जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी। नमस्ते माननीय महोदया जी, आपका धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ अपने विषय को रखने के लिए मौका दिया है। जैसे विदित है, मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं जगन्नाथपुरी धाम पुरी से पहली बार सांसद बन के आया हूँ। महोदया जी, आप सभी ने देखा होगा, गणमाध्यम के विषय माध्यम से देखा होगा, टीवी में देखा होगा, 7 और 8 तारीख रथ यात्रा थी। लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन पुरी में हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि पुरी एक ऐसा शहर है, एक ऐसा धाम है जहां लाखों लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। मेरा प्रश्न आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। एक अनहोनी घटी थी 29 मई 2024 को, जब जगन्नाथ जी की यात्रा से पहले एक नीति चल रही थी जिसमें चंदन यात्रा कहते हैं। नरेंद्र पोखर में प्रभु स्नान करने आए थे, वो चाप खेलना कहते हैं, उससे में आए थे, तो वहाँ आगजनी की एक दुर्घटना में लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि सबसे नज़दीकी अस्पताल जहाँ बर्न यूनिट अवेलेबल है, डेडिकेटेड बर्न्स यूनिट अवेलेबल है, वो लगभग 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथपुरी धाम में कोई भी बर्न यूनिट नहीं होने के कारण
17 लोगों की जान गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में खराब हालत में है। और वही कारण रहा कि 4 तारीख को जब नतीजे आए, हमारी जीत हुई, हमारे कई विधायकों की भी जीत हुई। हम लोगों ने नम आँखों से हमने उन लोगों को उस दिन विदाई दी। आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को अपील करना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ धाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि केंद्र मंत्रालय के अवदान से वहां खोला गया है, वहां 308 बेडेड हॉस्पिटल है, अनुदान केंद्र मंत्रालय का है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां एक डेडिकेटेड बर्न यूनिट खोला जाए। केवल डेडिकेटेड बर्न यूनिट ही नहीं, उस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी खोली जाए, क्योंकि पूरी कोई साधारण स्थान नहीं है। वहाँ लाखों लोगों का आवागमन होता है। कई बार हमने देखा है वहाँ रथ यात्रा के समय अगर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है तो गोल्डन फेज, गोल्डन पीरियड जो कुछ घंटों का होता है, उसके अंदर डॉक्टर खाना या अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण वो मृत्यु को वर्ण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से धारण किया जाए और एक डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस मेडिकल कॉलेज में खोला जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन की स्वीकृति हुई है। 2021 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ है। लगभग 469 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुआ है और इस वर्ष 2024 में ही इसको कार्य को पूर्ण होना है, लेकिन अभी तक इसका मात्र 30 से 35% कार्य ही पूर्ण हुआ है। ये जो 4 लेन है, हरियाणा और हिमाचल 2 राज्यों से होकर जाने वाला है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण और जब आज इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, ट्रैफिक की भारी समस्या हो रही है, बार बार ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा भूतल परिवहन मंत्री और केंद्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इसका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके, ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही है और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे निजात मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती मालविका जी। Thank you for giving me an opportunity for speaking today in the Parliament. Ma'am, through you, I would like to put forward a request for Kalahandi district for executing a very old project which was surveyed and put up for execution, connecting of the Rahul and Uttai Nadi under the National River Linking Project for irrigation purposes at Karla Munda blocks and Madanpur Rampur blocks of Kalahandi district. This will solve the drought situation which affect the poor farmers and their families cause of water shortage. It will also improve irrigation and provide water to villages which are completely rice farming areas and totally dependent on rainwater and river water. It will increase groundwater level and allow people to fill the water tanks which stay dry for most of the year, causing major problems and shortages in villages. Irrigation water is a big problem of the farmers in both the blocks Kalamunda and Madanpur Rampur of Kalahandi. As you all know, Kalahandi was once very infamous as the poor and famine-stricken district of India. But today, Kalahandi has worked very hard and developed and wanting to become the highest rice-producing district of Odisha. But few blocks still face water insufficiency, and hence I would request you once again to please sanction this project, as it would irrigate 2 big blocks of Kalahandi, Karlamunda and Madanpur Rampur. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री जुगल किशोर जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से
रेलवे मंत्रालय एवं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सांबा की ओर ले जाना चाहता हूं। सांबा एक बड़ा शहर है और एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोरोना काल के बाद यहाँ पर जो रेल चला करती थी उसका ठहराव जो है वो बंद हो गया है। वो अभी रेल वहाँ नहीं रुकती। कोरोना काल से पहले वहाँ पर काफ़ी रेल रुका करती थी, जैसे कि जम्मू मेल, मालवा, झेलम, हेमकुंड आदि आदि आदि। लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक हेमकुंड ही रेल जो है वो वहाँ रुकती है, बाकी रेल जो वो नहीं रुक पा रही हैं। कोरोना काल में ये बंद हुई थी, आज तक भी बंद ही है, वहाँ पर नहीं रुकती। मेरी आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना है कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको रेल पकड़ने के लिए या तो फिर पठानकोट या फिर जम्मू जाना पड़ता है, और इन दिक्कतों का सामना जो लोग करते हैं उनका कहना है कि फिर हमें बेहतर है कि हम बस द्वारा ही सफ़र करें, रेलवे का कोई लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है रेलवे मंत्रालय से कि वो रेल जो पहले वहाँ रुकती थी कोरोना काल से पहले, उनका ठहराव अब भी जारी किया जाए, जैसे कि जम्मू मेल हुई, मालवा, झेलम और संपर्क क्रांति आदि आदि। माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश जी। धन्यवाद सभापती महोदय। सगळ्यात पहिल्यांदा मी धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील तमाम जनतेचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की मला जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात दुसऱ्यांदा विश्वास टाकून पाठवलं। सभापती महोदय, मला महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेबद्दल या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचा विषय मांडायचा आहे। सभापती महोदय, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना नेमकी कुणासाठी आहे? शेतकऱ्यासाठी आहे का कंपन्यासाठी आहे? हा प्रश्न पडावा इतपत या योजनेची परिस्थिती आहे। सभापती महोदय, मला आपल्याला आकडेवारीवरून सांगायचं आहे की 2016 ते 2023 ह्याच्या दरम्यान फक्त महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा, राज्य सरकारचा हिस्सा आणि शेतकरी हिस्सा असं मिळून जवळपास कंपन्यांना 33,060 कोटी रुपयाचा प्रीमियम त्या ठिकाणी भरला गेला आणि कंपन्यांनी जो क्लेम त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिला तो आहे फक्त 23,874 कोटी रुपयाचा। सभापती महोदय, ह्याच्यातून एवढं दिसतंय की जवळपास 9,186 कोटी रुपयाचा नफा 2016 ते 2023च्या दरम्यान ह्या विमा कंपन्यांनी त्या ठिकाणी कमावला आहे। सभापती महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला विनंती आहे की कंपन्याचं भलं करण्यापेक्षा आता ह्या योजनेमध्ये बदल करणं किंवा काही धोरणात्मक बदल करणं सरकारला गरजेचं आहे। 1 हेक्टरचं पीक संरक्षित करण्यासाठी प्रीमियम पोटी कंपनीला जवळपास 18,000 रुपये एक हेक्टरी त्या ठिकाणी केंद्राचा हिस्सा, राज्याचा हिस्सा आणि शेतकऱ्याचा हिस्सा म्हणून दिला जातो आणि मदत मिळताना मात्र कंपनी त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसायचं काम करते। सभापती महोदय, मला अजून एका गोष्टीकडं ह्याच विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे। ऐन निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये खरीप 2023च्या पीक विम्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं 30 एप्रिल 2024ला एक परिपत्रक काढलं, ज्या परिपत्रकामुळं परत केंद्र सरकारचं धोरण कंपनीला धार्जिन आहे असं त्या ठिकाणी दिसतंय। सभापती महोदय, मला आपल्याला सांगायचं, आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगायचं की 2023ला खरीप पीक विम्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील 7,53,382 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी विमा उतरवला। पैकी 5,19,273 शेतकरी त्या ठिकाणी या विम्यापासून वंचित आहेत। सभापती महोदय, त्याचबरोबर बार्शी तालुक्यातील 88,560 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी पीक विमा उतरवला। पैकी जवळपास पूर्ण शेतकरी त्या ठिकाणी विमा अग्रिम मिळाला आहे पण विमा मिळण्यापासून त्या ठिकाणी वंचित आणि औसा तालुक्यातील 1,27,381 पैकी जवळपास 33,605 शेतकरी वंचित आहेत। त्याचबरोबर निलंगा तालुक्यामधले 1,46,716 पैकी 49,185 शेतकरी 49,185 शेतकरी त्या ठिकाणी वंचित आहे। सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातून मला सांगायचं आहे की हे परिपत्रक ऐन निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता असताना सरकारनं त्या ठिकाणी काढलंय
हे परिपत्रक जाचक आहे, ज्याच्यामुळं पीक विमा त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला मिळण्यापासून अडचण येते आहे आणि हे परिपत्रक रद्द करावं असं मी माननीय भारत सरकारच्या कृषी मंत्री महोदयांना 1 जुलै 2007 रोजी वैयक्तिक पत्राद्वारे मी त्या ठिकाणी मागणी केली आहे. माझी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला विनंती आहे की ह्या पीक विमा योजनेच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं फेरविचार करावा. 18,000 रुपये प्रीमियम कंपनीनं देण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी जर हे देता आलं तर मला वाटतं की शेतकऱ्याला डायरेक्ट पैसा मिळेल. आणि हे 30 एप्रिल रोजी काढलेलं जे परिपत्रक आहे ते परिपत्रक मात्र तातडीनं त्या ठिकाणी रद्द करावं आणि पीक विमा मिळण्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचा मार्ग त्या ठिकाणी केंद्र सरकारनं सुसह्य करावा अशी मी कळकळीची विनंती आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतोय. धन्यवाद सभापती महोदय. माननीय सदस्य श्री कौशलेंद्र कुमार जी. आपने सुनपहर में माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हावड़ा राजगीर फास्ट पैसेंजर ट्रेन राजगीर से हावड़ा के लिए चलती थी, जो कोरोना काल में बंद कर दिया गया है. इस फास्ट पैसेंजर ट्रेन में बड़ी संख्या में लोग बौद्धिस्ट और जैन धर्मी अनुयायी तीर्थ यात्रा के लिए सैलानी आना जाना नालंदा करते थे. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा इसके आसपास की बड़ी संख्या श्रद्धालु ट्रेन से देवघर भी जाते थे और बाबा भोले का आज से ही सावन मेला शुरू हुआ है. मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ट्रेन संख्या 530343 जो राजगीर से कोलकाता के लिए चलती थी इसको शुरू किया जाए. दूसरा है श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव कोविड के समय में सिलाव स्टेशन और बाबापुरी दोनों जगह बंद कर दिया गया था. जो कोविड के समय में बंद हुआ था उसको भी चालू कर दिया जाए जिससे वहाँ पर स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके. कई उसी तरीके से मेमू ट्रेन दानापुर से तिलैया कोरोना काल से पहले सभी होल्टों पर रुकती थी और अभी उसको बंद रखा गया है. महोदय आपसे निवेदन है माननीय रेल मंत्री जी से कि इसको भी चालू कर दिया जाए कि कोरोना के समय में जितने भी बंद पड़ी ट्रेनें हैं उसको अगर चालू कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को काफ़ी खुशहाली होगी. और हम लोग चुनाव में यह वादा करके यहाँ आए कि इन कामों को हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ जो काम हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो यहाँ काम हो रहा है निश्चित रूप से आपके बीच में हम लोग इन कामों को करा कर आए हैं. इसलिए आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस कार्य को करें. माननीय सदस्य श्री के राधाकृष्णन जी. Thank you, Honorable Speaker sir. I wish to draw the attention of the House the severe flooding disaster in Kerala. Continuous heavy rainfall has led to devastating floods and landslides, claiming over more than 25 lives and displacing thousands. The entire state of Kerala are worst affected. The state government's resources are stunted and thin, necessitating immediate central financial assistance. I urge the central government to provide minimum 1,000 crore financial aid, deploy additional NDRF teams, supply essential medical and food supplies, and offer technical and financial assistance for infrastructure reconstruction. This disaster demands our urgent and collective action to alleviate the suffering of the people of Kerala. Thank you, sir. Yes. Very important, sir. माननीय सदस्य श्री जी लक्ष्मी नारायण जी. మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంట్లో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి, నన్ను పార్లమెంటుకి
పంపించడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మాన్య ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, నారా లోకేష్ గారికి, నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా అత్యధిక మేరతో గెలిపించినటువంటి అనంతపురం ప్రజలందరూ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు అధ్యక్షుల వారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నటువంటి విషయం రిజంప్షన్ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ NH-67 Karnataka Andhra border to Gutti section. Honorable Speaker ji, the upgradation of NH-67 from Karnataka Andhra border to Gutti sanctioned under NHDP 4 with an investment of rupees 995.09 crores has faced severe delays. Originally scheduled for completion by October 2018, the project has been stalled for over 1.5 years, impacting road safety and regional development. The incomplete section, particularly between Guntakal and Gutti, is placed with potholes, unmarked debris and inadequate drainage. These hazardous conditions have led to frequent accidents, including fatalities, and have severely disrupted daily communities. The ongoing delays are not only compromising the safety but are also impeding economic growth in the region. And one more proposal, existing state highway road from Emignur on NH-167 at kilometer 94/400 connecting Emignur, Pattikonda, Guntakal, Uravakonda, Kalyanadurgam, Pavagada and terminating at its junction with NH-544E near Madakasera at kilometer 60/200 in the state of AP. Upgradation of NH proposal submitted to the MORT and H New Delhi on 21/6/2022. Length included in Kurnool district also. On one more proposal pending for upgradation of existing state highway 410 Ballari, Bommanal to N. Gundlapalli via Veparalla in Raidurg constituency road from kilometer 14.6402 to kilometer 52.673 in the state of Andhra Pradesh and MDR from kilometer 2.5502 to kilometer 14.640 in the state of Karnataka. Proposal submitted to the PS dated 21/4/22. The timely completion of these projects are crucial for meeting infrastructure needs and improving connectivity in the region. Our peoples live safely and economically well-being depend on the roads. Let us not fail them. Let us act with the urgency and responsibility that the situation demands. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री PP चौधरी जी। Thank you, Madam Chairperson, for affording me an opportunity to speak on one of the very important constitutional issues raised in the country. Madam Chairperson, recently the Kerala government has issued an order on 15th of July 2024 whereby Dr. Vasuki IAS officer appointed as a foreign secretary, and she was required to perform all the matter concerning to external affairs, external cooperation, and coordinate and supervise all the matters in this regard and incidental thereto. Madam Chairperson, I would like to submit that with respect to the cooperation, coordinate and supervise, these matter means to deal with various nations, deal with Indian embassies abroad and missions abroad, and these functions can only perform as per the constitutional mandate by the Government of India as per the business rules through the Ministry of External Affairs. So the action on the part of the Kerala government issuing such type of order and appointing one of the IAS officer
as Foreign Secretary to deal with the external affairs matter is nothing but unconstitutional, and it is a encroachment subject which has been given to the union government and under the union list, and this is a blatant outreach. And Kerala government is treating itself as a separate nation. So my submission that if it is expected from a Kerala government at least to see the list 1 that pertain to union subject from subject item number 10 to 14, and I would like to read these subjects so the Kerala government can read again these subjects are related to the list 1, that is a union list, and these subjects and these matters are mandated for the government of India, and these functions are to be performed by the Minister of External Affairs, not by the Kerala government. And the Kerala government is not competent to issue such type of order. And this subject I am reading this quote, this item number 10, list 1, union list, foreign affairs, all matters which bring the union into relation with any foreign country. Diplomatic, consular and trade representation, United Nations organization, I am concluding. Participation in international conference, association and other bodies and implementing of decisions made thereof, entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreement and conventions with foreign countries. So the order issued by the Kerala government appointing one of the IS officers as foreign secretary is unusual and it is unconstitutional. One of the most serious issue which is concerning the human life of the people of Kerala. This is due to the invading wild animals in human habitats is happening day by day in Kerala. Madam, there is an alarming rise in human-animal conflicts, especially involving elephants, tigers and wild boars. Last year itself, these conflicts claimed around 100 lives, and over 10 fatalities have already been reported this year. 4 people in Wayanad alone, district alone, 4 people had been killed within these 3-4 months. And for almost all agriculture plantation has been totally disturbed due to this man-animal conflict. In response, Kerala cabinet has declared the situation as a state-level disaster. The Kerala situation is not a unique situation, madam. The national data reveals that over 1,500 deaths from elephant attacks and 125 from tiger attack between 2019 and 2022 happened in Kerala. We are not against animals, madam, but human life, if there is any value of the human life, we are asking for a proactive action from the center. For the last so many years, entire Kerala people are asking rescue from the central government, but no response at all. In February, the Kerala Assembly called for amendments to the Wildlife Act. Of course, madam, Wildlife Act came with a progressive mind, we are agreeing. But now the problem is that whether the human life is important or not. Every day, people are in a great distress, and entire Kerala people, basically, especially the people who are residing near to the forest area, are great concerned for their livelihoods, for their life. Therefore, we need to intervene in that. Therefore, my submission is that the government of India is not taking any action. People are telling state government is also not taking action. Smart early warning system is not much effective. Strategic rapid response terms not even effective at all. Madam, cutting edge equipment and training, there is no sufficient equipment. Community involvement through Jana Jagarta Samiti, these are all namesake program. But in effect, in the reality, what is happening there, every day human life is suffering. Therefore, Kerala government, Kerala Assembly unanimously passed the resolution. I am quoting that from that resolution to amend the Wildlife Protection Act 1972, including subsection 2 of the section 5, delegating all the powers of Chief Wildlife Warden conferred under clause A of the subsection 1 of the section 11 of the Wildlife Protection Act 1972
to the Chief Conservator of Forest so as to enable them to take immediate action. Government of India has to do amendments immediately for that Forest Act, madam. This is the real, madam, you allowed for a political issue, whatever time they want. This is a human issue, madam. This is a human issue. Every day people are, at least allow us to raise this issue. Government has to come forward to change the law. This is what I want to say. Thank you very much. Very good. माननीय सदस्यगणों से कहना चाह रही हूँ, मैं अब कुछ अपने नए सांसदों को मौका दे रही हूँ, उसके पश्चात कुछ अन्य सदस्यों को भी मौका दिया जाएगा। समय की कमी है, इसके चलते कृपया अपना विषय 1 मिनट से अंदर ही रखें। माननीय श्री रविंद्र वाइकर जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इस सदन में मैं पहली बार मेरे विचार रखने जा रहा हूं। कल हम लोग इस सदन में आए थे, आने को निकले थे तो बारिश का मौसम है। एयरपोर्ट पर आए, 12:35 का प्लेन था, मगर 12:35 में वो प्लेन उड़ नहीं सका क्योंकि हेवी रेन थी। एक तो एक कारण है, मगर दूसरा कारण एक ये है। माननीय सदस्यगण अपने विषय को रखें, 1 मिनट से। अध्यक्ष महोदय, वही रख रहा हूँ कि वहाँ एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट के यहाँ 2 रनवे होने की ज़रूरत है। एक्चुअली वहाँ 2 रनवे है और उसकी कंप्लेंट भी की गई है। और वो कंप्लेंट ये है कि मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज equipped with the 2 crossing runway which are called 9/27 and 14/32. Runway 14/32, 2925 meter, actually 9,596 feet, is the one, that runway between Terminal 1 and 2, the main runway 9/27 intersect 14/32 just south of the internal buildings. At first it was the consider constructing a second parallel runway as part of its master plan, मगर वो अभी तक हुआ नहीं है। वो मास्टर प्लान होने की ज़रूरत है कि आजू बाजू में झोपड़पट्टी है। मुंबई शहर के सांता क्रूज एयरपोर्ट में, यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के बाजू में जो झोपड़पट्टी है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो कचरा होता है, वो कचरे के माध्यम से पशु पक्षी होते हैं, उसका धड़क विमान को भी लग सकता है, उसके कारण उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और 2 रनवे एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के अंदर होना जरूरी है। उसके अंदर एक फनेल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, आपकी बात आ चुकी है, आपका विषय आ चुका है पटल पर। माननीय सदस्य सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून दर्जा द्यावा अशी मागणी या ठिकाणी करत आहे। लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरंच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, आमच्या मनामनात दंगते मराठी, आमच्या रंगरंगात रंगते मराठी, आमच्या उर उरात संस्पंदते मराठी, आमच्या नसा नसात नाचते मराठी। आमची मराठी भाषा ही एक समृद्ध आणि प्राचीन भाषा आहे। या भाषेचा इतिहास जर बघितला तर तो हजारो वर्षापूर्वीचा इतिहास आहे। या भाषेतून लिहिलेलं साहित्य आणि धार्मिक ग्रंथसंपदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। मराठी साहित्याचे योगदान भारतीय संस्कृतीत विशेष स्थान राखून आहे। सध्या तमिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नडा, मल्याळम आणि ओडिसा या भारतातील 6 राज्यभाषांना केंद्र सरकारने अभिजात भाषा म्हणून दर्जा दिलेला आहे। मराठीत उपलब्ध असलेलं पहिलं साहित्य ग्राहा सप्तसई, गाथा सप्तसती हा 700 लोककवितांचा संग्रह आहे। पैठणीच्या हाल या सातवाहन राजाने सुमारे 2000 वर्षापूर्वी 50 कवितांचा एक जो आहे तो कवितांचा संग्रह त्या ठिकाणी पुरावे दाखल केले, मी या ठिकाणी मांडू इच्छिते। सातवाहनांची राजभाषा मराठी असल्याने त्यांचे जेथे जेथे राज्य होते तेथे तेथे या ग्रंथाची हस्तलेखिते मिळालेली आहेत। सातवाहनांचे संपूर्ण भारतभर राज्य होते आणि त्यांची राजवट इसवी सन पूर्वी 230 वर्षापासून जवळपास 400 ते 500 वर्ष होती।
त्यामुळे मराठी भाषेचे वय 2000 वर्षापूर्वीचे आहे हे सिद्ध झालेले आहे. मराठी ही प्राचीन भाषा आहे, त्याचबरोबर तर तिच्या श्रेष्ठ साहित्यांचं सातत्यपूर्ण परंपरा आहे. प्राध्यापक रंगनाथ पाठारे यांच्या समितीने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अभ्यासपूर्ण 500 पानांचा अहवाल केंद्र सरकारकडे संपुर्द केलेला आहे. या अहवालाचा अद्यापी मान्यता मिळाली नाही आणि म्हणूनच सन्माननीय अध्यक्ष महोदया 2000 वर्षापूर्वीची असलेली समृद्ध भाषेला आपका विषय पटल पर आ चुका. धन्यवाद. आणि त्यासाठी मराठी माणसाच्या माध्यमातून मी या माननीय सदस्य सुश्री धन्यवाद. माननीय सदस्य सुश्री सयानी घोष जी. Shayoni Ghosh. No, Shayani Ghosh. Ma'am, you can speak. Madam, thank you so much for letting me speak in this August House, and I also thank the people of Jadavpur Parliamentary Constituency for electing me as their representative. Madam, metros are the fastest and the most convenient and the cheapest mode of urban commuting, and there has been several ongoing projects to extend the Kolkata metro. However, the Baruipur-Kobi Subhash, also known as the Garya metro extension, was proposed in the railway budget of 2011-2012, but there has been no positive movement since then. Baruipur is a fast developing town about 25 kilometers from Kolkata with a growing population of more than 5 lakh people. Thousands of people utilize the train facility daily to commute for work, for education and other essential activities. Since Kavi Subhash is becoming a key junction for the residents of Baruipur, a metro station is the need of the hour. In 2017, the tentative plan was to build the tracks along the Adi Ganga, but nothing has happened since. Despite the completion of the feasibility study for extending Kavi Subhash to Baruipur link as a part of East-West metro extension, it still awaits approval from the Railway Board. Our leader, Honorable Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, was repeatedly raising the issue, highlighting the ongoing delays by the Railway Ministry. Several letters have been written to the Ministry, including letters from the Speaker of West Bengal Legislative Assembly, who is also the MLA of Baruipur Paschim, for construction of this key metro expansion, but to no avail. Madam, I implore the government to expedite the Baruipur Kavi Subhash metro extension proposed for over more than 12 years. It is extremely crucial for the people of both रूरल एंड अर्बन बारुईपुर. लाखों की तादाद में लोग कलकत्ता आते हैं और ये मेट्रो स्टेशन जितनी जल्द हो सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा. से आपके माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी. माइक चल कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. सासाराम पार्लियामेंट बिहार से मैं चुन करके आया हूं. वहां के जनता जो मेरे लिए भगवान हैं. आपको मालूम होगा कि सासाराम पार्लियामेंट सुरक्षित सीट है. वहां पर SC ST की संख्या बड़े तादाद में है. मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी जब 5 साल के थे तो अपने दादा दादी को मैंने खोया था और मेरी एक बहन थी उसको भी मैंने खोया था. चूँकि मेरा सवाल स्वास्थ्य के लेकर के है. वहाँ पर कैमूर पहाड़ी है और कैमूर पहाड़ी ओल्डर देन हिमालय है, उससे भी पुराना है और पहाड़ के ऊपर में बहुत सारे SC ST समाज के लोग रहते हैं और दवा के अभाव में आज भी वर्ष में हर साल हज़ारों लोग दम तोड़ देते हैं. तो मेरा अनुरोध होगा स्वास्थ्य और आपसे आपके माध्यम से कि वहाँ एक बेस्ट यदि ट्रामा सेंटर का यदि वहाँ पर स्थापना हो जाए, मिल जाए, एम्स मिल जाए तो उन हज़ारों लोगों को हर साल बचाया जा सकता है. चूँकि सवाल इस प्रकार से है कि यदि छोटी सी बीमारी हो जाए तो हमें कि तो बनारस जाना पड़ता है, नहीं तो पटना जाना पड़ता है. लेकिन आज भी 80% से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं और जिनके पास पैसा के अभाव में वो ना बनारस जा पाते हैं ना पटना जा पाते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं. एक मेरा और अनुरोध होगा कि बिहार राज्य को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो उसके द्वारा भी हमारी उत्थान हो सकती है. आपने मौका दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
सदस्य सुश्री मिताली बाग जी। নমস্কার ম্যাডাম, আমাকে বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা শারদা, তারকেশ্বরের তারকনাথ এবং ঘণ্টেশ্বরীকে প্রণাম জানাই। আরামবাগ লোকসভাবাসী আমাকে প্রথম আশীর্বাদ দিয়ে সংসদ ভবনে পাঠিয়েছে। আমি একজন এসসি সম্প্রদায়ের মহিলা। আমার প্রশ্নটা সবথেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলার যে খেটে খাওয়া মানুষ, তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দীর্ঘদিন ধরে 100 দিনের কাজ করে এসেছেন। তাদেরকে বারবার কেন্দ্র সরকার হাতে না মেরে ভাতে মারার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে, সেইটা নিয়ে আমার প্রশ্ন। তাদের অবিলম্বে যেভাবে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, অবিলম্বে তাদের প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তার কারণ সংসদ ভবনে এসে আমরা কয়েকবার আমরা বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি এবং অনেক বিষয় আমরা শুনতে পেয়েছি যে কৃষির উন্নয়ন করা হয়েছে, শ্রমিকদের উন্নয়ন করা হয়েছে, এসসি এসটি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন করা হয়েছে, কিন্তু আখের আমরা খেটে খাওয়া গরিব মানুষরা একদিকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। যেহেতু আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, আমি আবারও বলছি অবিলম্বে বাংলার বঞ্চিত মানুষদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তার সাথে সাথে বলবো, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, ভাবাদিঘি থেকে আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুর যে রেল স্টেশন সেটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, যাতে অবিলম্বে এই আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র যাতায়াতের জন্য দুটো জায়গায় দুটো পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে, যাতে অবিলম্বে ভাবাদিঘি রেল সংস্কার হয়, নির্মাণ কার্য শুরু হয়, তার জন্য আপনার কাছে আমি তুলে ধরলাম। এবং আরেকটা ছোট্ট শেষ প্রশ্ন। দীর্ঘদিন আমরা একটা বিষয় দেখে আসছি, বাংলার যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তা বাংলার মানুষের হেসেল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, নাভিশ্বাস উঠেছে। এই বিষয়ে যদি কেন্দ্রীয় সরকার একটু আলোকপাত করেন তো আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বলতে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক আপনাকে ধন্যবাদ। माननीय सदस्य सुश्री आर सुधा जी। माननीय सदस्य श्री महेश कश्यप जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मुझे बोलने का अवसर मिला है और मैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र से हूँ, जो केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम से बड़ा क्षेत्रफल है। और महोदय, मुझे बस्तर के जनता लोकसभा में सांसद बना के इस लोकतंत्र का मंदिर भेजा है। आज़ादी के 77 वर्ष के हम प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ भैला डीला का लोहा खदान है और लोहा खदान से लोहा ले जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाया गया का विस्तार हुआ, लेकिन बस्तर के लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी रेल लाइन नहीं है। लेकिन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दली राजरा रेल लाइन का विस्तार हुआ है, रावघाट तक, केवटी तक रेल लाइन का विस्तार हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी से मुझे भेंट हुआ, लेकिन रावघाट से जगदलपुर तक का रेल लाइन अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि क्योंकि पहले किसी कंपनी को टेंडर दिया गया था और असमर्थता व्यक्त करके उनको उसका छोड़ दिया है। नया डीपीआर तैयार हुआ है, वो कब तक पूरा होगा, इसको मैं माननीय मंत्री महोदय जी के माध्यम से को पूछना चाहता हूँ। दूसरा, एक रायपुर से धमतरी तक एक बड़ी रेल लाइन का विस्तार हो रहा है। उस रेल लाइन को अपना केसकाल कोंडागांव से जगदलपुर तक विस्तार किया जाए। तीसरा, एक और रेल लाइन का मांग है, जो हमारा बैला डीला का लोहा खदान जो वहाँ से खनन हो रहा है, उसके लिए रेल लाइन है, लेकिन हमारे लोगों के लिए रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। उस रेल लाइन को गीदम से लेकर बीजापुर होके अपना गढ़चिरौली महाराष्ट्र को जोड़ा जाए, ऐसा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री के पास प्रस्ताव रखता हूं और इसके विषय में माननीय मंत्री जी से उसका कब तक उसका प्रारंभ होगा, इसका आप जानकारी उपलब्ध कराएं, आपसे निवेदन। माननीय सदस्य श्रीमती ज्योतिमणि जी। नहीं। माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोध जी। धन्यवाद मैडम, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मेरा जो विषय है
पिछले 5 सालों के अंदर वन विभाग की जो भूमि है, जो केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को जो अनुमति दी है उनके खनन के लिए, तो लगभग बड़े दुख की बात है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर 18,922 हेक्टर वन भूमि 179 कंपनियों को दी गई है। आज देश पर्यावरण से जूझ रहा है। आज देश में प्रदूषण काफ़ी हद तक पहुंच रहा है। हम पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भूमि प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है और इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है। ये जो आंकड़ा आया है 18,922 जो हेक्टर ज़मीन है, उसमें से 16,490 हेक्टर सिर्फ 4 राज्यों की है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और उसमें भी हम हिस्सा देखते हैं तो अधिकतर 90% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय जंगल में रहता है उस पेड़ पौधों को भगवान के रूप में मानता है। अगर उसकी पत्तियाँ और छोटी टहनियाँ भी अगर उसको अपने जीवन में उपयोग के लिए अगर लेता है तो वन विभाग दिक्कत करता है। लेकिन हम सिर्फ 5 वर्ष के अंदर ही 18,000 से अधिक हेक्टर भूमि अगर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय परेशान हुआ है। और मेरे विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर केलामेला और दाता जो वन भूमि ज़्यादा हो गया। मैं एक लास्ट कहना चाहूँगा, मेरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर बांसवाड़ा जो क्षेत्र आ रहा है, संसदीय क्षेत्र, उसके अंदर केलामेला और दाता जहाँ पर आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने परमिशन दी है। इसमें कहीं न कहीं मैं चाहूँगा इसकी जांच कर इसको रुकवाया जाए, आदिवासियों को विस्थापित होने से रोका जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से पहली बार चुनकर आया हूँ और आपने मुझे मौका दिया, मैं इसका बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। मानोर मेरे लोकसभा क्षेत्र में कम वर्षा होने की वजह से सूखे की स्थिति हो गई है, विद्युत आपूर्ति हो नहीं रही है, नहरों में पानी टेल में पहुँच नहीं रहा है और किसानों की फसलों का इतना भारी नुकसान है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएँ हैं, 13 ब्लॉक हैं और नहरें हैं, बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। पता नहीं किन कारणों से आज से कुछ साल पहले विद्युत बराबर आती थी। माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में पूरी बिजली किसानों को मिलती थी। इस समय विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से वहाँ किसानों की धान की फसल, गन्ने की फसल या जितनी भी फसलें हैं जिनको जल चाहिए, वो फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। मानो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र को, जो बुंदेलखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, बुंदेलखंड भी सूखे से प्रभावित है। मानो मैं यही कहना चाहता हूं कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र को सूखा घोषित करके किसानों की मदद की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्य श्री नरेश महस्के जी। हमारे चुनाव क्षेत्र में मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, वहाँ के रोड बनाने के लिए, रोड वाइंडनिंग करने के लिए और नागरिक सुविधा देने के लिए सॉल्ट डिपार्टमेंट की एक लैंड है, वो हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। बढ़ती नागरीकरण के लिए वो जगह की बहुत ज़रूरत है। पुष्कळशा मीटिंग या विषयावरती सॉल्ट डिपार्टमेंट बरोबर झालेल्या आहेत आणि तरीसुद्धा अजूनही सरकारकडनं त्याला प्रतिसाद मिळत नाही आहे। डिपार्टमेंटनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट, महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या एकत्र बैठक घेण्याचं ठरवलेलं आहे, परंतु अद्यापही त्याला तारीख दिलेली नहीं है। तो नागरिक सुविधा बनाने के लिए वो ज़मीन की हमें बहुत ज़रूरत है, तो जल्द ही जल्द वो ज़मीन हमें उपलब्ध कीजिए, उसके कारण लोगों को सुविधा मिलेंगी। चलिए, माननीय सदस्य श्रीमती कमलजीत सहरावत जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
मैं दिल्ली से आती हूँ और मेरे क्षेत्र का नाम पश्चिमी दिल्ली है। दिल्ली शहर आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जिसमें ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक कम्बिनेशन है और इसका आखिरी गांव ढासा बॉर्डर है जो हरियाणा से लगता है। दिल्ली में जॉब करने के लिए बहुत से लोग बादली झज्जर क्षेत्र से आते हैं और ढासा गांव से भी आते हैं। अभी तक दिल्ली में जो मेट्रो है मेरे क्षेत्र में, उसका आखिरी स्टेशन नजफगढ़ में है। लेकिन मैं हमारे कंसर्न मंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र को अगर ढासा गांव तक नजफगढ़ को जोड़ दिया जाए मेट्रो से और नांगलोई तक जोड़ दिया जाए तो पश्चिमी दिल्ली की और हरियाणा जो कंसर्न लोग आते हैं उनको बहुत बड़ी राहत होगी। तो आदरणीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। और एक अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की स्थिति के ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि मोनो रेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कम स्थान में हमें सुविधा दे सकता है और ये दिल्ली के हमारे सभी हम 7 सांसद हैं, सबकी आपस की जब बात हुई है तो सभी के क्षेत्रों में ट्रैफिक जैम की समस्या है। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कंसर्न मंत्री जी से कि वो मोनो रेल के कॉन्सेप्ट को दिल्ली में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि दिल्ली सरकार इस विषय को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और दिल्ली की जनता बहुत भुगत रही है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतियारी जी। धन्यवाद मैम, आपने मुझे मेरा क्षेत्र की समस्या को यहाँ रखने की जो सुविधा दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैम, मेरा क्षेत्र असम के कोकराझार है, कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी। उसमें एक एयरपोर्ट है, रूपसी एयरपोर्ट बोल के, जो उसको ऑपरेशनल किया गया आफ्टर 49 ईयर्स। 2021 की 8 मई को इसको ऑपरेशनल किया गया, लेकिन पिछले 2023 के 7 नवंबर से इसको यहाँ फ्लाइट नहीं चलता है कि उसमें फ्लाई वीक बोल के एक कंपनी ने उसमें ऑपरेशनल किया था, लेकिन पिछले 2023 से ये बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है, इसको परसिवेबल रीज़न नहीं दिया गया, तो इसको फिर से चालू करना है। अगर फ्लाई वीक इसको चालू नहीं कर पाते तो इसको एयर इंडिया या कि इंडिगो कोई एक कंपनी को इसको चलाने के लिए हमारे जो विभागीय मंत्री उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुवाहाटी, रूपसी और कलकत्ता तक चलते थे, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है, तो इसको तुरंत चालू किया जाए। इसलिए मेरे हाउस से मंत्री महोदय आपसे मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री विशेश्वर हेगड़े जी। नमस्कार। ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡರ್ ರೂಲ್ 377 ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ. IT BT ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಂತೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ राज्य सरकार ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ माननीय सदस्यगण से कहना चाहूँगी 377 पर न बोलें, शून्यकाल पर बोलिए. हाँ, शून्यकालದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಗಮ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಿಗಮದ ಟ್ರೆಸರಿಯ ಮೂಲಕವೇ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಣ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವರ್ಗಗಳ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೆಸರಿ ಮೂಲಕವೇ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. आवाज नहीं जा रही है. धन्यवाद महोदय. ये अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है महोदय. भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था परंपरा उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है. एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है. इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है. इसलिए आपके माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए. आपने मुझे मौका दिया. मैं पहली बार झारखंड लोहरदगा से नवनिर्वाचित हुआ हूं. आसन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं. माननीय श्री वी फर्नांडिस जी. Thank you, Madam Ji, for giving an opportunity to speak. I am a first-time MP from South Goa. The whole world knows about Goa as the most beautiful place, a paradise on earth. But in the last few years, we have been seeing a conspiracy with projects that have been thrust on Goa without taking the people into confidence. In 2016, they took our rivers in the name of nationalization, 6 rivers. Thereafter, during the lockdown, they brought 3 linear projects: the double tracking, the expansion of roadways, and the Tabnar project, which we have documentary proof. This is only to bring coal and convert Goa into a coal hub. Now, with
after the liberation of Goa in 1961 from the Portuguese rule. The only organized sector which is remaining today is the tourism sector, because the mining ban has fallen in place in 2012. The agriculture department is not doing that well. There have been efforts by the private players, by youth, to revive agriculture. A humble request to this government: take the people into confidence. Don't convert Goa into a coal hub, because the only sector which is giving jobs, employment to the people of Goa is tourism. And converting Goa into a coal hub will destroy Goa completely. कंप्लीट करें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री जगदीश बसुनिया जी। माननीय स्पीकर महोदय, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে আমাদের কুচবিহার জেলা একটা রাজার শহর, সে শহর থেকে যাতায়াতের জন্যে একটা রেল স্টেশন আছে, নিউ কুচবিহার রেল স্টেশন, এবং একটা কুচবিহার রেল স্টেশন। সেই নিউ কুচবিহার রেল স্টেশন থেকে যাওয়ার জন্য যে রেল লাইন, সেই রেল লাইন কুচবিহার থেকে আলিপুর যাওয়ার মূল সড়কের বরাবর সেখানে যায় লেভেল ক্রসিংয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এর জন্য রেল দপ্তর একটা রেলওয়ে ওভারব্রিজের নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। কি কারণে সেই কাজ বন্ধ হয়ে আছে, যদি রেল মন্ত্রক জানিয়ে সেই কাজটা দ্রুততার সঙ্গে শুরু করতে পারেন, তাহলে আমি রেলমন্ত্রীকে এই প্রশ্নটা আমি অনুগ্রহ করে দেখতে বলবো। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার, যে কুচবিহার থেকে একটা রেল লাইন দিনহাটা হয়ে বামনহাট হয়ে বাংলাদেশের রংপুর পর্যন্ত গিয়েছে। 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই রেল লাইনটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং রেল ব্রিজের একটা অংশ ভেঙে পড়ে আছে। যদি মাননীয় রেলমন্ত্রী সে রেলপথ পুনর্নির্মাণ করে বাংলাদেশের রংপুর হয়ে যদি কলকাতা পর্যন্ত সেই রেলকে সম্প্রসারণ করা যায়, তাহলে পূর্ব ভারত থেকে কলকাতা যাওয়া বা দক্ষিণ ভারত পশ্চিম ভারত যাওয়ার যে রাস্তাটা 3 থেকে 400 কিলোমিটার কম হবে। তাই মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করব, সেই পূর্বের যে রেল লাইন সেটা পুনঃ মেরামত করে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যাতে কলকাতার শিয়ালদা হয়ে পশ্চিম ভারত বা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়, সেই জন্য মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করছি। ধন্যবাদ মহোদয়। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, काफ़ी सदस्य नए बोलना चाहते थे, काफ़ी सदस्यों की सूची में नाम थे, लेकिन समय की कमी के कारण जिन सदस्यों के नाम थे उनको आगे अवसर दिया जाएगा। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।